Hi guys, I am Arya, one of the founders of Financial Sharp Classes, and today is our first session of valuation series. So, what we are trying to do by conducting valuation series is a lot of people get attracted to capital markets to make money, and as soon as you hear about capital markets from people, the first thing that people tell you to do is buy undervalued assets, be it real estate, be it equities, be it a bond. Everyone wants to buy undervalued things because saaf si baat hai. If you can buy something which is worth 200 for 100, then only you can make money by buying at 100 and selling at 200. So valuations in core finance jargon, this is called as valuations. Valuations एक business की निकालना आना is one of the most critical skill sets that is required in almost every top finance profession, be it investment banking, equity research, portfolio management, in fact, credit research, etc. And what we have observed, after training for so many years as CFA professionals, as private investors, managing family office money, placing so many candidates through our FinBridge and FinPlus programs into investment banking, portfolio management, venture capital, is what people actually lack the practical understanding of valuations. They know every theory. मतलब उनको theory में सब आता है. गवर्नमेंट ग्रोथ मॉडल क्या होता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है, फ्री कैश फ्लो को डिस्काउंट करो तो कंपनी का वैल्यूएशन निकल के आता है. I mean, they are brilliant with the basics, the formula written in the textbook. But as you and I know, right? अगर टेक्स्ट बुक के फॉर्मूला से सब कुछ चलता तो everyone would have been rich today. So valuation series is our attempt to bring on table the practical nitty-gritties that will help you in real markets. It will help you with application when you are analyzing a stock. And if someone is hunting for a quality, high premium job into finance domain, such knowledge when you put on resume would be highly impressive to attract a good recruiter. So with that basic thing in mind, let us begin our first session of valuation series. So in the first session, I actually want everyone to understand that on Twitter, on Instagram, on Telegram, everyone keeps on quoting Buffett, right? That valuation is present value of future cash flows. Everyone, this is a standard quote that you will find everywhere. But do people actually understand what Mr. Buffett meant by present value of future cash flows? How this one single line has become the epitome of valuation. It's so simple to understand कि आज एक बिजनेस का वैल्यू वो होना चाहिए जो आने वाले कुछ सालों के अंदर कमा सके. It's very simple in theory, but practically very difficult to estimate in reality. So we'll start with this basic concept in our first session, where I would try my level best to keep it very simple, so that आपको एक concept पहले दिमाग में clear हो कि ये future cash flow क्या होता है, उसका present value क्या होता है, और ये valuation से कैसे linked है. Okay, as a strict academic policy, I would clearly avoid taking names of any companies in my session. All right. So, although every concept that I am teaching is practical, it has been taken from a real company. But unfortunately, we don't want to quote any company in our session because of number one, regulatory aspects. We are not SEBI registered advisors. So, we cannot give comment on what we believe is something undervalued or overvalued. And second, markets are irrational. A lot of times we come to a conclusion that something is undervalued or overvalued. The funny thing is, it might remain undervalued or overvalued for a very long period of time. And then all arguments and debates begin. कि आपने तो undervalued बोला था, तो ये बढ़ा क्यों नहीं? आपने तो overvalued बोला था, तो ये गिरा क्यों नहीं? So it's your money, it's our money. Let us manage our own money with our own perspective. So our job is not to comment on stocks. Our job is to comment on the foundation principles that will help you
conduct valuation of any business that you are starting. With that absolutely clear, let's begin with this most famous line, that valuation of a company is nothing but present value of future cash flow. So I have created everything on a simple Excel template. What I would be doing in the YouTube description that we'll put below, I will also attach a Google Drive link containing such Excel files. You can download that and use it for your own purpose. All right. So let's start with the first thing. So imagine we are standing here, the point zero. All right. I hope it's visible, right? Point zero here. That's today. And we are trying to value a business. Correct? कि आज हमें ये चीज खरीदनी है, इसके लिए हम कितना पे करें. This concept can be simply understood by taking example of, like, say, a second-hand car reselling company. Imagine you are this. You are a company called as Pratik Limited. You buy second-hand cars and you sell second-hand cars. Correct? Simple as that. Now, based on your experience, let's imagine you're aware that एक 4-5 साल चला हुआ पुराना होंडा सिटी जिसका एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ हो, राइट, वो मोटा मोटा मार्केट के अंदर 5 लाख रुपए में बिक जाएगा. सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? सो इफ समवन कम्स टू यू जिसके पास 4-5 साल पुराना होंडा सिटी चलाया हुआ है, एट व्हाट प्राइस वुड यू लाइक टू बाय दैट होंडा सिटी फ्रॉम हिम? आपको पता है आगे 5 लाख में आप बेच पाओगे, तो आप 5 लाख से तो कम में ही खरीदोगे, राइट? लेट्स इमेजिन यू बाय एट 4 लाख, बिकॉज आप 4 लाख में खरीदोगे, 5 लाख पे आगे किसी को फिर बेचोगे थोड़ा गाड़ी को रिफर्बिश करके, तो आपका 1 लाख का बीच का प्रॉफिट बनेगा, राइट? दैट वुड बी नथिंग बट 1 लाख डिवाइड बाय योर परचेज प्राइस 4 लाख, a return of 25%. Will you ever commit a mistake of buying this car from someone at 5.5 lakh or right at 5 lakh? Because 5 लाख पे खरीद लिया तो भी क्या फायदा, आपका पैसा क्या बनेगा? आप 5 लाख पे खरीदोगे, 5 लाख पे बेच दोगे, और अगर आपने 5.5 लाख पे खरीद लिया तो शॉर्ट आपका लॉस है, राइट? दिस इज व्हाट बफेट मेंशन्स एट रिस्क, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल. आप 5.5 लाख पे खरीदोगे, 5 लाख पे बेचोगे, 50,000 का गारंटीड आपको नुकसान होने वाला. Through this simple perspective, we can recreate a diagram, right? जहां पे बीच में आपका मार्केट्स है, आपके निफ्टी है, आपके सेंसेक्स है, राइट? बट इन मार्केट्स ऑपोजिट थिंग फंक्शंस, क्योंकि मार्केट के अंदर, लेट्स इमेजिन ये कार वाला एग्जांपल था जहां पे आप 4 लाख में से कार खरीदेंगे, वी कैन कॉल इट एज करंट मार्केट प्राइस, राइट? एंड वी कैन कॉल योर 5 लाख रुपीज द टारगेट प्राइस. आपको पता है टारगेट प्राइस 5 लाख का होने वाला है बेस्ड ऑन योर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो आपको ये बिजनेस वाले एग्जांपल में, सेकेंड हैंड कार वाले में, आपको इसका श्योरिटी होता है कि ब्रॉडली ठीक है 4.8 से 5.2 लाख के बीच में तो मैं निकाल ही दूंगा होंडा सिटी. आपको नेगोशिएट करना पड़ता है इस बंदे से. आप जितना सस्ता खरीद सको उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. इमेजिन करो वो कोई एजेड बंदा आया था, आपने उसको समझाया कि भैया आपकी तो कार का क्या फायदा है, आप 3.5 लाख में बेच लो, उसको पैसे की जरूरत थी अर्जेंट बेसिस पे, वो 3.5 लाख में भी मान गया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. और कोई यंग इंसान आया जिसको इंटरनेट के अंदर और वेबसाइट्स का पता है जो कि सेकेंड हैंड कार खरीदती बेचती है, उसने आके आपको चैलेंज किया, अरे वो वेबसाइट वाला तो 4.2 लाख में भी लेने के लिए तैयार है, तो आपको शायद 4.2 4.3 लाख में ये कार उससे खरीदना पड़े, और आगे आप 5 लाख पे बेच पाओगे, तो आपका प्रॉफिट कम होगा. इन शॉर्ट, यू आर क्लियर with the target price, but you are unclear with the purchase price in this example. And that is broadly taught in theories. But in market, what happens is exactly opposite. You are absolutely clear with the purchase price. क्योंकि BSE NSE पे सामानों से लेके 345 तक, 330 तक, राइट, हर दिन आपको प्राइस क्लियर होता है कि आपको कितने शेयर किस रेट में मिल सकते हैं. Unfortunately, in equity markets, in capital markets, you are unclear with target price. कि आप आगे जाके इसको बेच कितने में पाओगे. So ये target price निकालना is actually called as valuations. Correct?
ये है ब्रॉडली वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट फॉर अ बिजनेस टुडे. क्योंकि आपको वो जानकारी तो आज ही लेनी पड़ेगी. वाई? बिकॉज ये जो करंट मार्केट प्राइस है वो आज का है. तो इफ यू डिसाइड टू बाई टुडे समथिंग एट 100, टुडे यू नीड अ जजमेंट, राइट, कि आप इसको फ्यूचर में किस रेट पे बेच पाओगे, या इसकी एक्चुअल वैल्यू आज की रेट में कितने की है. अगर आपको आज वो जजमेंट नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितने की हो सकती है, आप ये समझ ही नहीं पाओगे. एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 100 रुपीज आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. That is why, because you are buying something today, you need to take out valuation of something also today, ताकि टाइम टू टाइम का डॉट कंपैरिजन हो सके. With that basic picture in clear, now let's go to our main example. So आज आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस खरीदना है, करेक्ट. आपको उसकी वैल्यूएशन निकालनी है. अब बिजनेस क्या होता है? एक मशीन होता है, राइट. सो जस्ट इमेजिन, जब अपन एक बिजनेस को खरीदते हैं, अपन वो बिजनेस के अंदर कैश इन्फ्यूज करते हैं, राइट. तो वी वांट दैट मशीन टू गिव अस कैश बैक. लेन देन का धंधा है. आप मेरे से रोक डालोगे, आप मेरे को कैश दोगे. That is what is simply a business is done for. Now, whether you are selling a plastic, you are a diamond manufacturer, you are an automobile manufacturer, the basic functioning of a business is take capital and return capital. So when we buy a stock on BSE or NSE, we are paying out cash. That is a negative entry. अपने जेब से पैसा लग रहा है. So what we expect from business is कि वो हमको पॉजिटिव कैश फ्लो रिटर्न करे. इसलिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाई द वर्ड कैश फ्लो हैज कम इनटू वैल्यूएशंस. कि एक बिजनेस का वैल्यू क्यों कैश फ्लोज के बेसिस में निकलेगा, ना कि प्रॉफिट के बेसिस पे. बिकॉज जब मैं मेरी जेब से कैश दे रहा हूं, आई वुड एक्सपेक्ट कैश इन रिटर्न. वहां से ये बेसिकली प्रिंसिपल आइडियोलॉजी डेवलप हुआ है मार्केट के अंदर, दैट यू नीड टू कंपेयर कैश अगेंस्ट कैश. So first thing that we need to understand while we are valuing a business is you and I, we need a future guidance about ये company कितना cash flows कमा सकती है. Now for timing, I want to avoid कि ये cash flows कैसे calculate होते हैं, cash flows कितने variety के होते हैं, because these are the topics that we are reserving for our financial analysis series. I don't want to get into basics of accounting here. This is series for valuation. Okay, and because this is our first session, we are understanding the basics of it. I am not going into depth of how to calculate that, because that is again a 2-3 video lecture. How to estimate this future cash flow. For our first session, we are just randomly plugging in the numbers here. कि imagine करो, आपने कंपनी का बिजनेस पढ़ लिया, आपको उसका आइडिया लग गया, आपके अंदर वो बिजनेस को प्रेडिक्ट करने का कॉन्फिडेंस आ गया कि आने वाले 4-5 साल के अंदर ये बिजनेस के कैश फ्लोज के साथ क्या हो सकता है. बेस्ड ऑन दिस आइडियोलॉजी यू हैव डिराइव्ड दिस कैश फ्लो कि आज से 1 साल बाद ये कंपनी लेट्स इमेजिन 100 करोड़ का मेरे को कैश दे देगी. सेकेंड ईयर में ये 200 करोड़ का कैश दे देगी, थर्ड ईयर में 300 करोड़, फोर्थ ईयर में 400 करोड़, फिफ्थ ईयर के अंदर 500 करोड़. बट फिफ्थ ईयर के एंड पे ये बिजनेस बंद तो नहीं हो जाने वाला, ये बिजनेस तो चलता ही रहने वाला है. अब ये बिजनेस कब तक चलेगा वो दुनिया में कोई आंसर नहीं कर सकता, राइट. जब नोकिया ब्लैकबेरी अपने पीक पे थे, जब कोडेक अपनी पीक पे था, अपनी पीक पे था, नो वन न्यू ये बिजनेसेस सडनली दे कैन डाई. जब किंगफिशर अपनी पीक पे था, जब डेकन हेराल्ड अपनी पीक पे था, नो वन कुड प्रेडिक्ट, राइट, कि ये तो आज से 5 साल बाद धंधा बंद हो जाएगा. ड्यू टू दिस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी, अकाउंट्स के अंदर वो कॉन्सेप्ट आता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि अपने को अज्यूम करना पड़ता है कि एक बिजनेस इंफिनिटी तक चलता ही रहेगा. बिकॉज वी प्रैक्टिकली कैन नॉट एस्टिमेट द डेथ ईयर ऑफ अ बिजनेस, राइट. कैसे 30 साल बाद ये धंधा बंद हो जाएगा. सो जितने पीरियड के लिए आप वो कंपनी का कैश फ्लो फोरकास्ट कर सकते हैं, एक एनालिस्ट वो कैश फ्लो को फोरकास्ट करता है. बट उस पीरियड के एंड पे जहां पे उसको लगता है कि यार आज से 5 साल के बाद और क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करते करते आगे ईयर्स में, उतना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उतना मैं नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ. तो उसको फिफ्थ ईयर के एंड पे एक अजम्पशन बनाना पड़ता है कि फिफ्थ ईयर के एंड पे चलो ये बिजनेस अगर मैंने जाके किसी और को बेच दिया, कि अब मेरे को बिजनेस नहीं करना, तो सामने वाला मुझे कितना पैसा दे देगा. दिस टेक्निकली इज कॉल्ड एज टर्मिनल वैल्यू.
अभी के लिए अगेन आई वुड अवॉइड के टर्मिनल वैल्यू को निकालने के क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, एक्सेट्रा. फॉर आवर फर्स्ट सेशन वी आर सिंपली अज्यूमिंग दैट वी केम टू एस्टिमेट के 5th ईयर के बाद जाके अगर अपन ये बिजनेस किसी को बेचेंगे तो अपने को 5,000 रुपीज इजिली मिल जाएगा. 5,000 करोड़, आई एम सो सॉरी, 5,000 करोड़ अपने को इजिली मिल जाएगा. विद दिस सेट ऑफ अजम्पशंस अपने पास एक कैश फ्लो आ गए आने वाले 5 साल के फर्स्ट ईयर के एंड पे अपन 100 करोड़ कमा लेंगे, सेकेंड ईयर के एंड पे 200 करोड़, एंड थर्ड फोर्थ 5th ईयर के एंड पे 2 कैश फ्लो. एक तो कंपनी अपने को कमा के देगी 500 करोड़ साल का कैश फ्लो, एंड अपने बिजनेस किसी को जाके रीसेल करेंगे तो अपने को 5,000 करोड़ कैश मिलेगा. नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मच विल यू पे फॉर दिस बिजनेस टुडे? दैट्स द मेन क्वेश्चन. आपको फ्यूचर क्लियर है. इमेजिन वी आर गॉड, राइट? वी नो एग्जैक्टली क्या होने वाला है. लेट्स अज्यूम दैट फॉर टाइम में. Even after being God and having perfect idea of future, we still need to understand, right? आज इसके लिए कितना चुका हूं? So my basic question is to everyone: should I end up paying 6,500 crore for this business today? Because आने वाले 5 साल का अगर आप टोटल देखो, यहाँ पे फॉर्मूला को अगर आप ढंग से देखें टोटल, तो ये बिजनेस 6,500 करोड़ कमाने वाला है टोटल मिला के. तो क्या इसके लिए 6,500 करोड़ अपन चुका दे? A common sense answer would be नहीं. एंड उसके 2 रीजन है, सिंपल एज दैट, जो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिख रखे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन्फ्लेशन. एवरीवन वुड हैव हर्ड स्टोरीज, राइट, इन देयर फैमिली. यार हमारे जमाने में तो पेट्रोल 10 रुपए लीटर आता था, आज 100 रुपए लीटर का आता है. 20 साल के अंदर देखो दुनिया कितनी बदल गई है. करेक्ट? स्टैंडर्ड स्टेटमेंट फ्रॉम आवर दादा दादी पापा नानीज एटसेट्रा. व्हाट बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू टेल यू, राइट, कि पैसे की वैल्यू गिरती, जो बेसिकली आज 100 रुपए 20 साल बाद, समझो दादी के टाइम पे करे अपन, राइट, और 20 साल हो गए, एंड दिस इज टुडे. जो आज का 100 रुपए है, जो 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, इतना वॉल्यूम तो यार पुराने जमाने में 10 रुपए में ही आ जाता था. बेसिकली आज का 100 रुपए पुराने जमाने का 10 रुपए के बराबर हुआ. इन शॉर्ट, बिकॉज ऑफ महंगाई, राइट, आपके पैसे की वैल्यू गिरती है. तो अगर ये बिजनेस आज से 4 साल बाद आपको और मेरे को 400 करोड़ रुपए देने वाला है, तो उसकी वैल्यू आज तो कम होगी. करेक्ट? आज शायद 300 करोड़ अपने को उतनी चीजें खरीद के दे दे जो कि 4 साल बाद 400 करोड़ देगा. बिकॉज द मैथ इज वेरी सिंपल. इमेजिन वी वांट टू बाय वन प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी इज वर्थ 300 करोड़. करेक्ट? विल बाय वन प्रॉपर्टी, वन लैविश फार्म हाउस. ओके, अब वो फार्म हाउस की वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन 10% 5% भर के 4 साल के अंदर हो जाने वाली 400 करोड़. तो अगर 4 साल बाद आप और मैं वो फार्म हाउस खरीदने जाते हैं तो 400 करोड़ में खरीद पाएंगे. करेक्ट? अपन खरीद वो एक फार्म हाउस ही रहे हैं, बट 400 करोड़ में, जो कि आज अपन 300 करोड़ में खरीद सकते थे. दैट सिंपली मीन्स व्हाट? 4 साल बाद जो 400 करोड़ की वैल्यू होगी वो आज 300 करोड़ की है. सिंपल. सो ड्यू टू इन्फ्लेशन जो फ्यूचर का कैश फ्लो है उसकी वैल्यू प्रेजेंट कैश फ्लो से कम आती. क्लियर एवरीवन विद मी? ओके. सेकंड रीजन सिंपली, अगर ये बिजनेस 6,500 करोड़ रुपए अपने को कमा के देने ही वाला है, राइट, क्लियर, तो मैं उसके लिए 6,500 करोड़ रुपए ही थोड़ी चुका दूंगा. रिमेंबर सेकेंड हैंड कार वाला एग्जाम्पल. अगर अपने को पता है कि एक कार 5 लाख पे अपन बेच पाएंगे तो अपन उसको 5 लाख में ही थोड़ी खरीदेंगे, राइट. वी वांट आवर इन्फ्लोज, the mark here, if you can look here, right, from C56 to D56, जो अपने इनफ्लो आने वाले हैं, that should be greater than outflows, right? जो अपन आज पैसा चुकाएंगे तभी तो अपना रिटर्न बनेगा. So one thing is very clear कि बिजनेस की जो भी वैल्यूएशन आएगी वो 6,500 करोड़ से तो कम ही निकल के आएगी. That should be ultra clear to everyone till now. The second question is कितना? 6,500 करोड़ ये जो बिजनेस टोटल कमाने वाला है 5 साल के अंदर, उसके लिए फिर हम आज कितना वैल्यू पे करें, कितना कम वैल्यू पे करें. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग. सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. टेक्स्ट बुक के अंदर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज होते हैं, बट दिस इज नथिंग बट, ये अपने को 5th स्टैंडर्ड से स्कूल टीचर सिखाता आ रहा है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग.
सो मैंने यहाँ पे सिंपल वो फॉर्मूला लिखा है एंड इस फॉर्मूला के बेसिस पे आई विल टेक यू टू द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। अभी आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए जो यहाँ पे लिखा है, अभी आप खाली ये वाले पार्ट में स्क्रीन पे ध्यान दीजिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, राइट। इग्नोर दिस एस्पेक्ट राइट नाउ एंड ओनली फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट राइट नाउ। यहाँ पे फोकस करना है अभी सब, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल फॉर्मूला जो टीचर अकेडमी बचपन से अपने को सिखाते हैं स्कूल के अंदर, दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज़ टू पावर n। एवरीवन वुड हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला, राइट। कि अगर आज अपन 100 रुपए कहीं पे लगाते हैं जो कि अपने को 10% साल का रिटर्न देता है और 5 साल तक अपन पैसा रखते हैं तो 5 साल बाद अपने को कितना पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट, करेक्ट। एंड दिस इज ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। कि अगर अपन ने आज 100 रुपए लगाया एट 0 और 1 साल का अपने को 10% को इंटरेस्ट दे रहा है तो टोटल पैसा अपने पास कितना हो जाएगा 1 साल के बाद, 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और 100 रुपए का प्रिंसिपल तो था ही, दैट वुड लीड टू अ टोटल ऑफ 110। अब जो सेकेंड ईयर में अपन इंटरेस्ट कमाएंगे वो कमाएंगे 110 पे 10%, दैट वुड बी इंटरेस्ट ऑफ 11 रुपीज बिकॉज 110 पे अपने को 10% मिलेगा एंड अपने पास 110 ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के एंड पे था प्रिंसिपल, तो अपना सेकेंड ईयर के एंड पे टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 121। सो दिस इज कंपाउंडिंग, सिंपल। आई होप एवरीवन न्यू दैट, अगर नहीं पता था तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया। सो दिस आर स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब ये होता है प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना। देखो अपन ये किया, आज अगर अपन 100 रुपए लगाते हैं तो फ्यूचर में अपने को क्या मिलेगा, वेयर एज अब अपन क्या करने जा रहे हैं कि फ्यूचर में अपने को पता है अपने को 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ मिलने वाला है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या निकलेगी। एंड वो कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूला को है ना रिवर्स कर दिया गया है बाय द मैथमेटिशियंस इन द मार्केट। दैट सिंपली मींस व्हाट, लुक एट दिस फॉर्मूला, राइट एवरीवन। A is equal to P into 1 plus R upon 100 इसके पावर n। कितने साल तक अपन पैसा रखेंगे। अब मैं खाली इस फॉर्मूला को ना शिफ्ट करता हूँ, दैट्स इट। क्योंकि मेरे पास अब अमाउंट है, मुझे ये पता है कि मेरे को फ्यूचर में 1 साल बाद 100 करोड़ मिलने वाला है, बट मुझे उसकी वैल्यू कब निकालनी है, आज, टुडे। सो द फॉर्मूला वुड बी ए, राइट। अब इसको अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, राइट, नीचे शिफ्ट कर देंगे, राइट। क्लियर है एवरीवन विथ मी, ऑलराइट। सो अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, करेक्ट। सबसे पहले अपना यहाँ पे आ गया, just one second guys, I think I will let me take a blank screen. Yeah, okay, so white screen would be visible to you guys now. So this was the basic formula, right? Amount is equal to principal into 1 plus r divided by 100 raised to power n. Okay, अब इस फॉर्मूला को खाली शिफ्ट कर दिया गया बिकॉज अपने को प्रिंसिपल निकालना है, करेक्ट। कि अपने को लगाना कितना पड़ेगा, दैट इज वैल्यू टुडे। सो विल पुट अमाउंट हियर, राइट। We'll put 1 plus r raised to power of 100 here, right? And we will leave p here, okay? खाली p को यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब जो ऊपर का n है, as per mathematics, I don't want to get into statistics and math at this point of time. इस फॉर्मूला को जब आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे n को, राइट, ये बेसिकली 1 by n बन जाता है, सिंपल एज दैट। तो ये फॉर्मूला ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। अब ये p क्या होता है, प्रिंसिपल, कि आज कितना पैसा लगाना पड़ेगा कि अपने को फ्यूचर में कितना पैसा मिले। नाउ कमिंग बैक टू आर मेन एग्जाम्पल यहाँ पे, राइट, कि अपने को पता है, लुक एट दिस स्क्रीन, राइट, लुक एट दिस सेल, लुक एट दिस सेल 100 करोड़, राइट, विच इज नथिंग बट दिस, ओके। अब अपने को पता है कि 1 साल बाद अपने को 100 करोड़ रुपए मिलने वाला है, तो उसकी आज की में वैल्यू क्या निकली, पी। अब वो पी तो एक क्वेश्चन मार्क है, इनटू 1 प्लस, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि अपने को 10%, कहीं पर भी अपन पैसा लगाए अपने को 10% तो उस पर रिटर्न चाहिए ही चाहिए। अ सिंपल लॉजिक फॉर दैट इज, आप मार्केट में कहीं भी आपने अगर कोई भी ढंग का टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा फिनेंस का, वैल्यूएशंस का, आपने ना हमेशा पढ़ी होगी दैट इंटरेस्ट इज नथिंग बट डिस्काउंट रेट विच इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज जब भी अपन कहीं पे पैसा लगाते हैं, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स
अपन कहीं से पैसा ब्रेक करके नई अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो अपन इमेजिन करो, इफ यू गो एंड टॉक टू योर मॉम कि मॉम मेरे को पैसा चाहिए, मेरे पास कोई एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लाइन जो कि आपके मॉम यूज करते हैं? बेटा मेरा पैसा तो एफडी में पड़ा है, जहां पे मैं आराम से 8% 7% कमा रही हूँ, तो कुछ भी करे मेरे पैसे का, मेरे को मिनिमम 7-8% का तो रिटर्न दे ही देना, क्योंकि वो 8% का रिटर्न सैक्रिफाइस कर रहे हैं एफडी तोड़ के आपको पैसा देने में। तो उनको पीसफुल रहने के लिए मिनिमम 8% तो चाहिएगा, right? That means your mom would be expecting a minimum interest of 8% from the new opportunity. And let's replace the word interest with return. A minimum return of 8% from that new opportunity. Now, this is the concept of opportunity cost. So let's imagine in our example, we expect to earn on a minimum, 10%. So अपने R की जगह value क्या put कर दी? 10. Simple as that. So if I just write on screen, A is equal to A is 100 करोड़, P अपने को पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 था, तो अपने इसको कर दिया 1 प्लस 10% डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर n। कितने साल बाद ये 100 करोड़ मिलने वाला है? 1 साल बाद, तो रेज़ टू पावर 1। Now we have everything in this equation apart from P, so we can reverse calculate, right? Basically this 10 divided by 100 will become what? 0.1. Correct? And 1 plus 0.1 will become 1.1. So 100 is equal to question mark into 1.1 raised to power 1. Simple as that. Anything raised to power 1 is what? Same thing only, right? 1.1. So 100 is equal to question mark into 1.1. अब ये 1.1 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे. That means 100 divided by 1.1 is nothing but your question mark. And what was that question mark? Principal. कि अगर 1 साल बाद 100 करोड़ मिलेगा, जहाँ पे 10% अपन कमाना चाहते हैं, तो आज कितना पैसा लगाना पड़ेगा? Simple. This question mark, this principle is nothing but present value of 100 crore that will receive after 1 year. The calculations are pretty simple in Excel, right? The answer would be here. 100 divided by 1.1, that is 90.9 crore. So 1 साल बाद जाके जो हमें 100 करोड़ मिलने वाला है, करेक्ट, जहाँ पे हम 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 100 करोड़ की आज की डेट में एट 0.0 क्या वैल्यू आएगी? 90 करोड़। सिमिलरली गाइस, अपने को सेकेंड ईयर के एंड पे भी 200 करोड़ मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगेन द फंडामेंटल्स आर वेरी सिंपल। 200 करोड़ मिलने वाला है, दैट इज योर अमाउंट। प्रिंसिपल पता नहीं है, उसके लिए आज कितना लगाना पड़ेगा? इनटू 1 प्लस वही 10% इज द रिटर्न वी एक्सपेक्ट रेज़ टू पावर। अब यहाँ पे 2 आएगा, बिकॉज ये 200 करोड़ वी विल रिसीव आफ्टर 2 years, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। क्लियर? सो 200 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू वही 10 डिवाइड बाय 100 इज 0.1, and then 1 plus 0.1 will become 1.1. 1.1 raised to power 2. This is square. So 1.1 into 1.1 is nothing but 1.21. So 200 crore is equal to question mark into 1.21. Simply वापिस से इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे लेके आएंगे तो डिवाइड बन जाता है. So 200 crore divided by 1.21 will be your answer. That is here. See the figure I am marking around. That is 165 crore broadly. So जो पैसा the 200 crore that will receive at the end of second year, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है? 165 crore. In the similar manner, we can calculate the present value of every cash flow. See, I have already done that. कि थर्ड ईयर के एंड पे जो 300 करोड़ मिलेगा, उसकी आज की डेट की वैल्यू, ये 300 करोड़ की आज की डेट की वैल्यू would be nothing but this value, जो अपने यहाँ पे फॉर्मूला से निकाली है. ओके, that is nothing but 225 करोड़. फोर्थ ईयर के एंड पे द 400 करोड़ that we will receive, उसकी आज की डेट की वैल्यू इज नथिंग बट 273 करोड़. एंड द बिग अमाउंट 5500 करोड़ that will receive at the end of fifth year, उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3400 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. इन सबको अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे. नाउ व्हाई वी कैन ऐड दैट? सिंपली इफ यू लुक एट इट एट अ डायग्रामेटिकल फॉर्मेट, ये 100 करोड़ की आज की डेट की वैल्यू क्या है? 90 करोड़ ब्रॉडली. ये 200 करोड़ जो 2 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है? 165 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. ये 300 करोड़
जो कि 3 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है? अप्रोक्सीमेटली 225 करोड़, करेक्ट, दैट वी हैव हियर। जो 400 करोड़ फोर्थ ईयर के एंड पे मिलने वाला है, उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है? अप्रोक्सीमेटली 273 करोड़। जो 5500 करोड़ फिफ्थ ईयर के एंड पे मिलने वाला है, उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है? 3400 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। सो आज की डेट में ये बिजनेस की वैल्यू क्या निकलेगी? क्योंकि ये सारे कैश फ्लोज हमें ही मिलने वाले हैं, तो ये सारे कैश फ्लोज की आज की डेट की जो वैल्यू है वो हमें चुकानी पड़ेगी, तो सबको ऐड कर देंगे। सो द समेशन ऑफ, नाउ लेट मी कोट वॉरेन बफेट, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। So adding all this, we get the valuation of a company. So in our this dummy example, the valuation of a business today is 4,170 crore. And what is this business? This business is something which will give you this future cash flows. This is what, in simple terms, Buffett meant that valuation of a business is present value of future cash flows. And not only Buffett. Buffett was not just the first guy, to discover this definition. From the time of John Burr Williams, Benjamin Graham, the father of investing, उन सब ने ये definitions already पहले से quote कर रखी. It's just that because Mr. Buffett is much more popular, everyone knows this definition through Warren Buffett. Okay. Now, there are 2 or 3, final, 5 to 10 minutes of, session one I would like to spend on this topic, that we all, whoever has read, even basics of, CA final, Security Financial Management, SFM book, it is hot favorite subject of CA because everyone wants to enter into capital markets. CFA candidates who read CFA level 1, level 2, MBA candidates from, top tier IIMs, they all have read such lines. Everyone have read such lines. कि a less risky business is more valuable. मतलब एक धंधे के अंदर अगर रिस्क कम हो तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा निकल के आती. सेकंड, a business which is growing fast, मतलब let's imagine any startup that you are admire, Hindustan Unilever is growing at 7%, whereas let's say a Zomato or a Paytm is growing at 40% year on year. So as per the textbook, everyone has read that एक बिजनेस अगर हाई रेट पे ग्रो कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा होना चाहिए. थर्ड, everyone has read this line, or this particular statement has again been popularized by great investors like Philip Fisher, Warren Buffett again, Charlie Munger, Indian great investors like Mr. Ramesh Damani, Motilal Oswal, Ramdev Agarwal ji, basically Sanjay Bakshi ji, etc. That एक बिजनेस जो कि ज्यादा लंबे समय तक ग्रो कर सके, राइट, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस बिजनेस की वैल्यूएशन ज्यादा निकल के आनी चाहिए. सो दिस 3 स्टेटमेंट्स आर समथिंग दैट एवरीवन हैज जस्ट बिलीव्ड टू बी ट्रू. सी द थिंग्स दैट आई मार्क्ड इन येलो. But a lot of freshers, see, I am not talking to someone who has been, practicing investing for a decade, जो कि ऑलरेडी 50 किताब पढ़ के बैठा हूं. उन सब के लिए टॉपिक वुड बी वेरी सिंपल बिकॉज दे हैव दैट एप्टीट्यूड टुडे कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये सारी बातें करेक्ट है. बट फॉर समवन यंग लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर 10 years बैक इनटू कैपिटल मार्केट्स, मेरे लिए इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस समझना was practically impossible because कहीं पे आंखों के सामने ये लाइंस करेक्ट प्रूव होते हुए दिख नहीं रही थी कि यार एक लेस रिस्की बिजनेस का ज्यादा वैल्यू निकल के आना चाहिए. वो प्रूफ कैसे हो रहा है? एक हाई ग्रोथ बिजनेस ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, ये प्रूफ कैसे हो रहा है? एक बिजनेस जो कि 3 years की जगह 10 years तक ग्रो कर सके, उस बिजनेस के वैल्यूएशन आज ज्यादा निकल के आनी चाहिए, प्रूफ कैसे हो रहा है? एंड आई वाज समवन हु कुड अंडरस्टैंड थिंग्स इजीली अगर ये जो इंग्लिश की स्टेटमेंट्स है ये कहीं प्रूव होते हुए दिखे, राइट, थ्रू सम यूसेज ऑफ नंबर्स, बिकॉज देन उस थियरी पे बिलीफ बढ़ जाता है. एंड अगर आपका कोई नॉलेज के ऊपर बिलीफ बढ़ जाता है, आपको उसको अप्लाई करने में कॉन्फिडेंस आ जाता है. एंड जब तक आपको कोई नॉलेज को अप्लाई करने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, गाइस, आप कभी इसको अप्लाई कर ही नहीं पाओगे. एंड
then you cannot grow in your career because you are not able to apply it. So based on that perspective, I thought, okay, let me try to quantify this subjective, qualitative, theoretical statements, right? कि एक बिजनेस के अंदर रिस्क कम हो तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा निकल के आता है. लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट, एंड विल टेक सेम एग्जांपल जो अपने ऊपर डमी एग्जांपल लिया था कि वही एक बिजनेस है, राइट, जो कि 1 साल बाद आपको जाके 100 करोड़, फिर 2 साल बाद 200 करोड़, 3 साल बाद 300 करोड़, 4 साल बाद 400 करोड़ एंड 50 ईयर के एंड पे accumulative value of 5,500 करोड़ ये कैश फ्लोस देगा. बट लेट्स इमेजिन ये जो ऊपर वाला बिजनेस था ना, ये एक स्टील का बिजनेस था. नाउ प्लीज डोंट टेक माय स्टेटमेंट्स विथ अ कंप्लीट ट्रुथ इन टर्म्स ऑफ दैट. नहीं, डोंट स्टार्ट फाइटिंग कि नहीं स्टील का धंधा खराब थोड़ी होता है. आई एम नॉट टेलिंग स्टील का धंधा खराब होता है. आई एम जस्ट पुटिंग अ पर्सपेक्टिव बिकॉज अ स्टील business is more volatile in terms of revenue and profits. Like you must have studied, some data points very recently that uh, Tata Steel का खाली एक quarter का profit is equal to last 10 years of profit of Asian Paints, HUL, etc. So it looks very fascinating that steel might be a great business, but equally important data point is the kind of losses that Tata Steel made in the last 4, 5, 6, 7 years, like practically from 2009 till 2018-19, वो लाइफ में कभी इन कंपनीज ने करी भी नहीं. सो बिकॉज स्टील इज जस्ट मोर वॉलेटाइल, बहुत शार्प प्रॉफिट्स आते हैं, फिर बहुत शार्प डाउन टर्न आता है. आई एम टर्मिंग इट एज अ रिस्की बिजनेस, सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स. आई एम नॉट फाइटिंग कि स्टील इज अ बैड बिजनेस. सो इमेजिन ये स्टील कंपनी था और ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल है ये एक एफएमसीजी कंपनी. नाउ बिलीविंग परसेप्शन ऑफ पीपल, they believe FMCG is a less risky business. Now again, I personally don't agree with it because everything has positive and negatives. But because FMCG business is again less volatile, कोविड है तो भी बिजनेस थोड़ा बहुत चलता रहता है, बूम है तो भी बिजनेस थोड़ा बहुत चलता रहता है. So people think they have this perception that FMCG is a less risky business. Now, if it is a less risky business, right? क्या कहाँ पे फर्क आता है? Again, I would bring mothers into picture, right? If you go and tell your mom, right? My mom, okay, let's not comment on anyone mom, my mom, कि मम्मी आपका पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा रहेगा, करेक्ट? तो मम्मी आपको 5% का रिटर्न चलेगा क्या? मम्मी बोलती है बेटा देखो मैं कोई बैंक में जाके रखूं तो वहां पे तो 6.5% मिलेगा, बट बेटा आजकल मैंने बहुत पढ़ा है ये बैंक के अंदर प्रॉब्लम हो गई, वो बैंक बंद हो गया, फिर वो कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी वाला बंद हो गया, लोगों का पैसा अटक जाता है. गवर्नमेंट 5% दे रही है ना, बट मेरा कैपिटल सेफ है. बट बहुत हद तक एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा पैसा सेफली मेरे पास वापस आ जाएगा. चलेगा बेटा 1% कम कमाएंगे लेकिन पैसा सेफ रहना चाहिए. What technically she is trying to say in financial jargon is, beta, my opportunity cost of capital to keep this money in a safer asset like a government deposit is 5%. अगर मैं कोई प्राइवेट बैंक को देती तो क्योंकि रिस्क थोड़ा ज्यादा होता तो मैं 5% से खुश नहीं होती, तो मेरे को मिनिमम 6.5-7% का रिटर्न चाहिए क्योंकि मैं रिस्क भी ज्यादा ले रही हूँ. Similar logic के हिसाब से when people are evaluating businesses in capital market and they believe it is a less risky business, they are happy to own a bit lower rate of return because even the rate of return is lower, the surety is high कि मेरे को इतना रिटर्न तो आ ही जाएगा. So putting that into perspective, जब अपन ने ऊपर ये थॉट प्रोसेस बनाया था कि मेरे को मिनिमम 10% तो रिटर्न चाहिए ये बिजनेस से, एक लेस रिस्की बिजनेस के अंदर क्या होगा, वी विल टेक दिस रिटर्न टू बी लोअर कि ठीक है ऊपर आया तो आया बट मिनिमम में 6% से भी खुश हूं बिकॉज ये लेस रिस्की बिजनेस है. नाउ व्हाट दिस डज टू वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैं इफ यू कैन रिमेंबर, सी आई एम मार्किंग हियर, इफ यू कैन रिमेंबर ये 100 करोड़ यहाँ पे 1.1 से डिवाइड हो रहा था तो 90 करोड़ का आज की डेट में वैल्यू निकलने आया था. अब अगर मैं 6% लेता हूं मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैं 100 करोड़ को किससे डिवाइड करूंगा,
1.06 से। पहले मैं किससे डिवाइड कर रहा था? 100 करोड़ को 1.1 से। अब सिंपल मैथ लगाते हैं यार, 4/4 is 1 and 4/2 is 2। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया, 4 का 2 चला गया, तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है ना फाइनल, वो 1 की 2 चली जाती है। विथ सिंपल कॉन्सेप्ट इन माइंड, जब मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर 1.1 का 1.06 चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी आज की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। लुक एट दिस टू नंबर। अगर मैं मिनिमम 6% कमाने में हैप्पी हूं, तो एक साल बाद जो मेरे को 100 करोड़ मिलने वाला था, उसकी आज की डेट में वैल्यू निकल के कितनी आती है फिर? 94 करोड़। और अगर मेरे को मिनिमम 10% का रिटर्न चाहिए था, तो एक साल बाद जो मैं 100 करोड़ कमाने वाला था, उसकी आज की डेट में वैल्यू निकल के क्या आ रही थी? 90 करोड़। सी, 4.3 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि मेरा डिस्काउंट रेट 10% का मैंने कितना कर दिया? 6%। अब सिमिलर लॉजिक के हिसाब से आने वाले हर कैश फ्लो की वैल्यूएशन बढ़ेगी। लुक हियर, जो ऊपर वाले एग्जांपल में सेकेंड ईयर के एंड पे अपने को 200 करोड़ मिलने वाला था, उसकी आज की डेट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी? 165 करोड़, क्योंकि इट वाज बीइंग डिवाइडेड बाय 1.21, 1.1 into 1.1। यहाँ पे this 200 crore will be divided by 1.14, a lower denominator, because it would be 1.06 into 1.06। तो वो 200 करोड़ की वैल्यू आज की डेट में निकल के कितनी आती? 174 करोड़। So calculating present values of all the future cash flows and summing it up to them, because sum करना पड़ेगा, remember, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया था, the value of this business today is coming out to be 4,625 करोड़, और ऊपर कितना निकल के आ रहा था? 4,170 करोड़। अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ से इस कंपनी का क्या बढ़ गया? वैल्यूएशन। द फनी थिंग इज, ये दोनों बिजनेस आपको सेम कैश फ्लो कमा के देने वाले, सेम कैश फ्लो। बट आप एक बिजनेस को बोलेंगे कि यार ये बिजनेस तो 4,000 करोड़ का वर्थ है, और आप दूसरे बिजनेस को क्या बोलेंगे? ये बिजनेस के लिए तो ठीक है, मैं 4,600 करोड़ भी पे करने के लिए तैयार हूं, या ये बिजनेस 4,600 करोड़ का होना चाहिए। अ सिंपल थिंग, लेस रिस्की, मोर वैल्यूएबल। करेक्ट? Now again, there are a lot of nitty-gritties here, yeah. It cannot be that simple, but this is our first session. We are learning the basics of it, so I think that's okay. This concept is okay as basic in session number 1. Second, आप सबने ये सुना होगा कि अगर एक बिजनेस के अंदर ग्रोथ रेट हाई हो, तो उसके अंदर वैल्यूएशन होना चाहिए। So I have created another dummy example here. So imagine there is a new business जो कि एक साल बाद 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ का कैश फ्लो देगा, a much bigger cash flow, right? सेकेंड ईयर के एंड पे 400 करोड़ का, थर्ड ईयर के एंड पे 600 करोड़ का, फोर्थ ईयर के एंड पे 900 करोड़ का, एंड फिफ्थ ईयर के एंड पे 1200 करोड़ प्लस 5000 करोड़, दैट इज 6200 करोड़। Just to show you the impact of high growth, see, high cash flow आ रहा है, high growth, I am keeping discount rate now here to be 10%, कि खाली वैल्यूएशन में जो फर्क आए एज कंपेयर टू एग्जांपल नंबर 1 जो सबसे पहले अपने किया था, वो फर्क खाली कैश फ्लोज की वजह से आना चाहिए वैल्यूएशन पे। बिकॉज अगर डिस्काउंट रेट सेम है, तो एग्जांपल नंबर 1 जो अपने ऊपर किया था और इस एग्जांपल में क्या फर्क हुआ? खाली कैश फ्लोज का ही फर्क हुआ, कि यहाँ पे कैश फ्लोज हैव ग्रोन एट हाई रेट, करेक्ट, और ऊपर कैश फ्लोज वेर लो। सो इफ आई डिस्काउंट दिस सीरीज ऑफ कैश फ्लो बाय 10%, वो ही सिंपल, ये 200 करोड़ को पीछे 400 करोड़ को पीछे, the valuation of present value of future cash flow is coming out to be 5,500 crore. And remember the first business that we did, right? Everyone remember the first business that we did, right? Same discounted 10%, but cash flows were growing at lower rate, right? So the valuation was coming out to be 4,170 crore only. And here it is coming out to be 5,500 crore. So simply, again, this is now proved. Theoretically, it is proved. There are a lot of nitty-gritties we'll do. I hope to take 100 sessions on the same. This is just one. That the present value of future cash flow is coming out to be 5,500 crore. Okay. Now, third thing and the final thing for today's session, that longevity in business is more valuable. That means what? जो अपना पहला एग्जाम्पल था,
अगर अपन यहाँ पे देखें राइट ऊपर जाके, ये बिजनेस ना 5 साल बाद ही ठंडा पड़ गया। 5 साल तक तो अच्छा कैश फ्लो आया, फिर 5th ईयर के एंड पे अपने को इसको बेच देना पड़ा। वेयर एज इमेजिन देयर इज अ बिजनेस जो कि स्टार्टिंग के 5 साल तो सेम यही कैश फ्लो दे रहा है, बट वो बिजनेस 5 साल के एंड पर ठंडा नहीं पड़ेगा, वो आने वाले 10 साल तक ढंग का कैश फ्लो देगा, एंड वी विल सेल दैट बिजनेस एट द एंड ऑफ 10th ईयर। मतलब धंधे की लॉन्जिटिविटी बढ़ गई, वो बिजनेस जो कि 5th ईयर के एंड पे एंड होने वाला था वो 10th ईयर के एंड पे एंड होगा। दैट मींस दैट बिजनेस इज लिविंग लॉन्गर, technically in finance that is called as longevity. Okay, let's create an example simple here. Okay, imagine a business will function for 8 years rather than 5. तो ये उसके कैश फ्लोज है। 5th ईयर तक सेम है, 6th ईयर में 600 करोड़, 7th ईयर में 700 करोड़, 8th ईयर में 800 करोड़, एंड देन अगेन एट द एंड ऑफ 8th ईयर विल सेल इट फॉर 5000 करोड़, राइट? I have taken discount rate same to be 10%. So हर कैश फ्लो को मेरे को 0.0 पे लाना पड़ेगा बाय डिस्काउंटिंग एट 10% इन द सेम मेथड जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल 1 में बेस सिनेरियो में सिखाया था। द ओनली थिंग इज अब यहाँ पे 600 करोड़ भी 6 साल के लिए पीछे आएगा, ये 700 करोड़ भी 7 इयर्स के लिए पीछे आएगा, एंड 8th ईयर में टोटल कितना मिलने वाला है? 800 करोड़ प्लस 5000 करोड़, दैट इज 5800 करोड़। ये भी अब 8 साल के लिए अपने को डिस्काउंट करके पीछे लाना पड़ेगा। जस्ट ऑब्जर्व वन कैच, ये 5th ईयर में है ना, अब खाली 500 करोड़ डिस्काउंट होगा, क्योंकि 5000 करोड़ तो अब 5th ईयर के एंड पे नहीं, कहां पे मिलने वाला है? 8th ईयर के एंड पे। जस्ट सिंपल changes happening here. So calculating present value of all the future cash flow, look at the valuation that is coming of this business. It is coming out to be 4,400 crore, approximately 4,470. It is approximately higher by 300 crore. See, look here, the valuation was 4,100 crore or 4,200 crore. Here, the valuation has gone to 4,500 crore. Broadly, a change of 300 crore. Why? Because here we have 3 more cash flows. 600, 700, 800 करोड़ वाला जो कि पहले नहीं मिल रहा था, because the business is living longer. Now you can trust this 3 lines at least कि अगर एक बिजनेस कम रिस्की होगा, हाई ग्रो करेगा और 90 समय तक अगर ग्रो करेगा तो वो बिजनेस का वैल्यूएशन आज हाई चलना चाहिए. You can understand that, at least have belief that this may be true. Okay, as a closure, now I would like you to understand one thing, and this thing will build a base for session number 2 that a lot of people keep fighting on, right? कि ये 25 का पीई लो है, 15 का पीई लो है, 50 का पीई महंगा है, एक कंपनी का पीई 50 है, दूसरे का 60 है, तो ये अंडर वैल्यूड है, वो ओवर वैल्यूड है. Now you should understand why that fight is practically meaningless. Look at our example, right? Just look at our example. Between the base example, मैं इसको base example बोल रहा हूँ सबसे पहला. Between the base example and ये scenario number 1, यहाँ पे अपने less risky business create किया था, करेक्ट? अगर अपन इन दोनों बिजनेस को पकड़े और कंपेयर करें, राइट? बिजनेस ए, द बेस वर्सेस बिजनेस बी, इनका पीई रेशियो, अभी मैं आपको सेशन 2 में पीई रेशियो समझाऊंगा टेक्निकली, बट जस्ट इमेजिन पीई रेशियो इज नथिंग बट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ स्टॉक डिवाइड बाय वो कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है. राइट नाउ लेट्स कॉल इट एज अर्निंग पर शेयर. मतलब अगर आपको कंपनी, अगर एक कंपनी का पीई रेशियो 15 है, दैट सिंपली मींस व्हाट? 15 डिवाइड बाय 1, करेक्ट? दैट सिंपली मींस व्हाट? 15, आई एम सो सॉरी, डिवाइडेड बाय 1. दैट मींस अगर मैं को 1 रुपए कंपनी कमा के देगी, उसके लिए मैं 15 रुपए तक चुकाने के लिए तैयार हूं. क्लियर? सो लॉजिकल बात है ना यार, अगर कोई कंपनी मेरे को 1 रुपए कमाने के लिए कमा के देगी तो आई वुड बी हैप्पी ना, जस्ट पेइंग 5 रुपीज फॉर दैट, वर्सेस अगर कोई कंपनी मेरे को 1 रुपए कमा के देगी और मैं उसके लिए 10 रुपीज चुकाने जाऊं. ऑब्वियसली बात है, आई वुड लव दिस, क्योंकि दोनों कमा के तो 1 रुपया ही दे रहे हैं, बट यहाँ पे मेरे को खाली 5 रुपए चुकाना पड़ रहा है, यहाँ पे मेरे को 10 रुपए चुकाना पड़ रहा है. दैट इज वाई थियरी के अंदर ये बना है कि लो पी इज बेटर, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वील अंडरस्टैंड दैट इन लेटर सेशन, बट फॉर बेसिक यहाँ से वो रूल आया है
why low PE is better. But that cannot be absolutely true always, right? क्योंकि ये कंपनी थियरिटिकली 5 के पीई पे मिलेगा, ये कंपनी 10 के पीई पे मिलेगा. So as per textbook, everyone has believed this. कि लो पीई इज बेटर देन हाई पीई. मतलब अगर मेरे को कहीं पैसा लगाना हो तो 5 के पीई का स्टॉक मेरे को खरीदना चाहिए, 10 का पीई का महंगा है. इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निकली लोग फाइनेंस में. बट जस्ट लुक इन आवर एग्जांपल. Let's look in our example. What is P of this particular company? Correct? मैंने नीचे निकाल रखा है. I'm so sorry. Let me take you down here. So look, company A. Look here. B61 divided by 70. I have taken. So see B61 कहाँ गया आपका? This is B61, right? ये एक कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा था, right? Divide by 70. I have assumed कि ये कंपनी 70 रुपीस का प्रॉफिट पर शेयर कमा रही थी. तो इसका पीई कितना निकल के आएगा? 60 का. बट कंपनी बी इन आवर सिनेरियो, इफ आई टेक यू अप स्लाइटली हियर, राइट, दिस जो कि लेस रिस्की बिजनेस था, इसका वैल्यूएशन क्या निकल के आ रहा था? 4625. अब अज्यूमिंग, बिकॉज वी नीड टू डू एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, अज्यूमिंग ये कंपनी में 70 रुपीस का अर्निंग पर शेयर कमा रही है, इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना निकल के आएगा? 66. इसकी वैल्यूएशन डिवाइड बाय 70 rupees का earning per share. So do you think it is right to comment because company A, the base company, is available at 60 ka PE, that is cheaper, and company B that is available at 66 ka PE is expensive? No, right? Why no? Because B is a less risky business, it will be available at a higher valuation as compared to company A. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लो पीए है, ये हाई पीए है, तो ये सस्ता है, ये महंगा. That is absolutely good to clear the exams, but in real world you will be stuck in a very bad manner if you are applying it on, real life listed companies, right? So this is the basic with which, I would like to end that a simple random comparison of valuation ratios doesn't work practically in the market. Now, there are a lot of things, if you can look here, I have marked here in my box, because I hope, and I know some, very great practitioners also who have been investing into markets for decades, who have made big wealth from equity markets, would be thinking right now, कि यार valuation तो बहुत deep होता है, इतना basic थोड़ी यहाँ होता है. So for such, well qualified, respected people, I would like to, speak something in the end, that yes, we know that economic profits, return on equity, reinvestment rates, discount rate, interlinkages are actually the real concepts on which valuation is derived. Opportunity size, management quality, etc. We know all that, but we cannot just bombard someone who is listening to the first session today with everything that is there in valuation, which has been published in 100 years. So if someone who is well experienced is watching our sessions, I would request them, please keep on watching our session. Wait for it. Slowly and steadily, session 6, 7, 8, 9, 10, 11 will build upon, from basic concepts to the most advanced concepts that you would have studied in the domain of valuations. With that, we will end our first session. I hope you liked it. Please do like, share, and comment your thought processes on our YouTube channel. We also are posting good quality short content on Instagram too, which is again not just a dance with a music video, but genuine quality content, but in a shorter 30 seconds, 1 minute time frame. So follow our Instagram handle also, which goes by the name Finacle Shah. And please subscribe to our YouTube channel to watch more videos. And please do definitely like, share, and comment. And you can also save the video. All right, guys, thank you so much. See you back in session number 2.